Amoebic liver abscess or ALA. It is an important cause of space occupying lesion of the liver. It occurs mainly in developing countries caused by protozoan parasite and Amoeba histolytica. So, amoebic liver abscess, that is ALA, it is a space occupying lesion of the liver. ALA, amoebic liver abscess, it is a space occupying lesion of the liver. Okay, and it is because of a protozoan parasite and amoeba histolytica. Amoebic है तो it's due to a amoeba known as and amoeba histolytica. Clinical manifestations of ALA, that is amoebic liver abscess. It presents with tender hepatomegaly and fever, most consistent features. So, tender hepatomegaly and fever is the most consistent feature, along with weight loss, sweating, weakness, very rarely jaundice, and cough. So, consistent features are tender hepatomegaly and fever. Other symptoms are weight loss, sweating, weakness, rarely jaundice, and cough. So, clinical manifestation, most consistent features hepatomegaly, tender hepatomegaly, and fever. Tender hepatomegaly and fever are the most consistent features of amoebic liver abscess, along with weight loss, sweating, weakness, jaundice, and cough. Let's see the complication of amoebic liver abscess. Complications of amoebic liver abscess. With continuous hepatic necrosis, abscess may grow in various directions of the liver, discharging the contents into the neighboring organs. Okay. So कंटिन्यूस हेपाटिक नेक्रोसिस के कारण ये जो एब्सेस है ये अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है, ठीक है, जिसके कारण इट विल डिस्चार्ज द कंटेंट्स इनटू द नेबरिंग ऑर्गन्स. ठीक है, कंटिन्यूस हेपाटिक नेक्रोसिस के कारण जो एब्सेस है वो अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो करेगा एंड इट विल डिस्चार्ज इट्स कंटेंट इन द नेबरिंग ऑर्गन्स. First complication is right-sided liver abscess may rupture externally to the skin, causing skin lesions on the abdominal wall called as granuloma cutis. Okay. Granuloma cutis or amoebiasis cutis, or rupture into the lungs, that is pulmonary amoebiasis with trophozoites in the sputum, or into the right pleura, that is amoebic pleuritis, which is the most common complication. ठीक है, सो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है. जो लिवर एब्सेस है वो रप्चर कर सकता है स्किन पे, जिसके कारण स्किन लीशंस हो सकते हैं. एब्डोमिनल वॉल पे स्किन लीशंस हो सकते हैं नोन एज ग्रानुलोमा क्यूटिस और अमीबिएसिस क्यूटिस. ठीक है, स्किन पे जो लीशंस होंगे दे आर नोन एज ग्रानुलोमा क्यूटिस और amoebiasis cutis. ठीक है, they can rupture into the lung, that is pulmonary amoebiasis with trophozoites in the sputum. ठीक है, pulmonary amoebiasis होगा तो sputum में trophozoites मिलेंगे. अगर राइट प्लूरा में रप्चर करते हैं देन इट इज़ नोन एज अमीबिक प्लूराइटिस. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन. द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज अमीबिक प्लूराइटिस. ठीक है, तो ग्रानुलोमा क्यूटिस हो सकता है दैट, या अमीबिएसिस क्यूटिस हो सकता है, मतलब स्किन लीशंस ऑन द एब्डोमिनल वॉल बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द लीशन इज नोन एज ग्रानुलोमा क्यूटिस या अमीबिएसिस क्यूटिस. लंग्स में अगर रप्चर होगा देन इट कैन कॉज पल्मनरी अमीबिएसिस. ठीक है, और स्पूटम में ट्रोफोसाइट्स मिलेंगे. इट कैन कॉज अमीबिक प्लूराइटिस विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन. Rupture of the liver abscess below the diaphragm leads to subphrenic abscess and generalized peritonitis. डायफ्राम के नीचे अगर लिवर एब्सेस का रप्चर होगा तो उसके कारण सब फ्रेनिक एब्सेस हो सकता है और जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस. ठीक है, बिलो द डायफ्राम अगर रप्चर करता है इट विल लीड टू सब फ्रेनिक एब्सेस एंड जनरलाइज्ड
peritonitis. Right-sided liver abscess may rupture into the stomach or left pleura or pericardial cavity, and this is known as amoebic pericarditis. तो जो राइट साइडेड था वो स्किन में रप्चर कर सकता है, लंग्स में रप्चर कर सकता है, या प्लूरा में रप्चर कर सकता है, राइट प्लूरा में रप्चर कर सकता है. लेफ्ट साइडेड जो है दैट कैन रप्चर इनटू द स्टमक या लेफ्ट प्लूरा या पेरिकार्डियल कैविटी. सो लेफ्ट साइडेड रप्चर कैन कॉज अमीबिक पेरिकार्डाइटिस. ठीक है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड स्टमक आता है, लेफ्ट प्लूरा आएगा या पेरिकार्डियल कैविटी आएगा. ठीक है, तो लेफ्ट साइड रप्चर के कारण अमीबिक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है. हेमाटोजीनस स्प्रेड कैन ऑकर फ्रॉम लिवर इफेक्टिंग ब्रेन, causing brain abscess and secondary amoebic encephalitis. It can go to lungs, spleen, and genitourinary organs, causing painful genital ulcers. तो हेमाटोजीनस स्प्रेड के कारण वो ब्रेन तक जा सकता है एंड कैन कॉज ब्रेन एब्सेस एंड सेकेंडरी अमीबिक एंसेफेलाइटिस. ठीक है, हेमाटोजीनस स्प्रेड से वो ब्रेन तक जाएगा. इट कैन कॉज सेकेंडरी अमीबिक एंसेफेलाइटिस और ब्रेन एब्सेस. ठीक है, ब्रेन एब्सेस या सेकेंडरी अमीबिक एंसेफेलाइटिस. It can go to the lung, spleen or genitourinary organ and cause painful genital ulcers. ठीक है, so what are the complications of amoebic liver abscess? ये होगा क्यों? कंटिन्यूस हेपाटिक नेक्रोसिस के कारण जो एब्सेस है वो अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो करेंगे और रप्चर हो जाएंगे. राइट साइडेड रप्चर के कारण ग्रैन्युलोमा क्यूटस या अमीबिएसिस क्यूटस हो सकता है. पल्मोनरी अमीबिएसिस विथ ट्रोफोसाइट्स इन स्पूटम मिल सकता है, या अमीबिक प्लूराइटिस हो सकता है. अमीबिक प्लूराइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन. अगर डायफ्राम के नीचे रप्चर हो रहा है इट कैन कॉज सब फ्रेनिक एब्सेस या जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस. लेफ्ट साइडेड रप्चर के कारण वो स्टमक में जा सकता है, लेफ्ट प्लूरा में जा सकता है, या इट कैन कॉज अमीबिक पेरिकार्डाइटिस. ठीक है, हेमाटोजीनस स्प्रेड हो सकता है, ब्रेन में जा सकता है वेयर इट कैन कॉज ब्रेन एब्सेस एंड सेकेंडरी अमीबिक इंसेफेलाइटिस. जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स में जाके इट कैन कॉज पेनफुल जेनाइटल अल्सर्स.